Hello students. Today we'll be discussing some basics about the numerical practice of dissolution of partnership firm. In this lecture we'll be basically focusing upon the basic concepts that are to be kept in mind while solving any of the numerical problem related to dissolution of partnership firm. So very good morning all of you, myself Dr. Mohina, and let's start today's class. This is the problem we are going to solve today. See, read the question very carefully because question reading is the first basic concept required for providing right solution. So see, in the question we are given the ratios, we are given the ratios 3:2:1. So you are to keep in mind ratios while solving the question. Then you are given various kinds of liabilities on the liability side and some assets on the asset side. In liabilities, some things are starred, like investment fluctuation fund. This is a new entry you must be looking forward, and these are the basic entries I wish to discuss in this particular class. Similarly, there is life policy fund. Life policy fund. See, investment fluctuation fund is given this side and investment is given this side. When both of these are given, these two are to be transferred to the realization account. रियलाइजेशन अकाउंट में हम तभी ट्रांसफ़र करेंगे जब ये दोनों चीज़ें गिवन है. Similarly, we are given life policy on one side and life policy fund on one side, and on other side we are given joint life policy. So again, when these two are given, are to be transferred to realization account. Otherwise, if one is given, see, if you are given these two, if you are given investment fluctuation fund and life policy fund, but in case you are not given these two things, these will be transferred to the capital accounts of the partner. So here you are to remember that these investment fluctuation fund is given this side and investment is given this side. Similarly, life insurance policy fund is given this side and joint life policy is given this side. So we will be transferring life insurance policy to the debit side of the realization account and this to the credit side of the realization account. By doing this, we will be closing the books of accounts. Now proceeding further with the solution. See, first of all, what you will do, you will transfer all the liabilities except insider liabilities. Ab insider liabilities mein we are given only capital. So other than capital, all the entries will be transferred to the realization account. See, it is transferred in the realization account in the liability side, and similarly outside assets are transferred to the all the assets are transferred to the रियलाइजेशन अकाउंट. असेट्स आउटसाइड नहीं होते हैं, असेट्स को ट्रांसफ़र करेंगे अदर देन ऑल असेट्स ऑफ कैश एंड बैंक. देखो इसमें कैश और बैंक गिवन है. जब हमें बैंक गिवन है तो बैंक को छोड़ के के सारे असेट्स को हम रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे. यहाँ प्रोविज़न गिवन है, प्रोविज़न को हम अदर साइड ऑफ द रियलाइजेशन अकाउंट. दैट मीन्स सी, हमने डेटर्स को यहाँ ट्रांसफ़र किया है तो प्रोविज़न को हम इस साइड ट्रांसफ़र करेंगे. ऑपोजिट साइड एंट्री विल कैंसल इट्स इफेक्ट. सो आपने देखा, हमने सारे असेट्स को ट्रांसफ़र कर लिया, हमने लाइबिलिटीज़ को ट्रांसफ़र कर लिया जो भी गिवन थी, आउटसाइडर लाइबिलिटीज़. मिसेस एक्स लोन इज़ आउटसाइडर लाइबिलिटी. X is the partner to the firm, but Mrs. X is not partner to the firm. So it's an outside liability and will be transferred to this account. After doing this, read the question once again. I am taking you to question again. See, in the question you are given some adjustment entries. Some adjustment entries are there.
सो दीज एंट्रीज आर टू बी रेड केयरफुली। जो भी जितने अमाउंट में पे ऑफ हो रहा है, कुछ असेट्स को पार्टनर्स लेके जा रहे हैं, कुछ लाइबिलिटीज़ को पार्टनर्स लेके जा रहे हैं, अकॉर्डिंगली हम सारी एंट्रीज़ को रियलाइजेशन अकाउंट में 1 बाय 1 करना शुरू कर देंगे। जैसे जॉइंट लाइफ पॉलिसी सरेंडर्ड फॉर ₹18,000। सो इन सॉल्यूशन वी हैव शोन जॉइंट लाइफ पॉलिसी एंड जॉइंट लाइफ पॉलिसी इस साइड हमने शो की है, सारी इन्वेस्टमेंट्स इस साइड हैं, जॉइंट लाइफ पॉलिसी इस साइड है, तो जब उसकी पेमेंट आएगी वो इस साइड शो हो जाएगी 18,000। सिमिलरली सेकेंड एडजस्टमेंट आपको गिवन है, X took over investment in 25% more than the book value. So in realization account we will consider debtors are taken by the partner at 75,000 and the same entry will also be passed in the partner's capital account for taking those assets. जब पार्टनर असेट को लेके जाएगा तो उसकी कैपिटल रिड्यूस होगी और कैपिटल रिड्यूस होने पे एंट्री इस साइड आएगी। जब वो लाइबिलिटी को टेक ओवर अगर करता तो एंट्री इस साइड आ जाती, बट इस केस में कोई लाइबिलिटी को टेक ओवर नहीं किया है, असेट्स को लेके जा रहे हैं, तो असेट्स आर शोन ऑन दिस साइड। सिमिलरली on balancing the books of accounts, some losses are generated and those losses are also transferred to the partner's capital account. I hope this all concept is clear. One more thing that has to be kept in mind, कुछ लाइबिलिटीज़ ऐसी होंगी जिसके बारे में आपको एडजस्टमेंट एंट्रीज़ में गिवन होगा और कुछ ऐसी भी हो सकती हैं जिनके बारे में एडजस्टमेंट एंट्रीज़ विल बी साइलेंट। अगर कोई ऐसी लाइबिलिटी है जिसके बारे में एडजस्टमेंट एंट्रीज सेइंग नथिंग दैट हैज़ टू बी पेड इन फुल, उसकी पेमेंट फुल में आपको करनी ही पड़ती है। लेकिन अगर कोई ऐसे असेट्स आपको गिवन है जिनके बारे में आपको कोई एडजस्टमेंट एंट्री नहीं गिवन है, उसकी कोई एंट्री इस साइड पे नहीं आएगी। दैट मीन्स वो असेट बिक नहीं पाया, उससे कोई भी पैसा जनरेट नहीं हुआ। सो इस तरीके से आप अपना रियलाइजेशन अकाउंट बनाएंगे। रियलाइजेशन अकाउंट पूरा बनने के बाद आपने रियलाइजेशन का जो प्रॉफिट या लॉस जनरेट हो रहा है वो कैपिटल अकाउंट्स में ट्रांसफ़र करना है और कैपिटल अकाउंट्स इस तरीके से आपके रेडी हो जाएंगे। वो आप ओपनिंग बैलेंस डालेंगे, जो असेट्स टेक ओवर हुए हैं वो डालेंगे, सारे लॉसेस को डालेंगे एंड जो बैलेंसिंग फिगर आएगी, कीप इन माइंड दैट इज़ टू बी पेड टू द पार्टनर्स। सो इसको हमने बैलेंस कैरिड डाउन नहीं लिखना है क्योंकि बुक्स ऑफ अकाउंट्स को हम क्लोज कर रहे हैं, इसको हम लिखेंगे बैलेंस कैरिड डाउन। तो इसको हम लिखेंगे बैंक अकाउंट, बैलेंस कैरिड डाउन कहीं पे भी नहीं आएगा। सिमिलरली यही अमाउंट जो है ये बैंक में भी बैंक पे करेगा। तो पेमेंट साइड पे देखिए एक्स और वाई और जेड की तीनों की कैपिटल्स आ गई और एक्स का अगर कोई लोन है तो वो पार्टनर्स लोन है, दैट इज़ नॉट आउटसाइड लाइबिलिटी। सो सेपरेट बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर टू बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। उसका हम ओपनिंग बैलेंस भी ट्रांसफ़र करेंगे एंड वील मेक पेमेंट इन फुल इफ़ नथिंग इज सेड इन द क्वेश्चन अबाउट द सेम। और उसी की पेमेंट देखिए यहाँ भी 8,000 की हो रही है। सो आप जब सारी अमाउंट्स को ट्रांसफ़र कर लेंगे बैंक से रिलेटेड बैंक में, और जिन जिन एंट्रीज़ में देखिए बैंक आ रहा है मैं मार्क कर देती हूँ, जिन एंट्रीज़ में बैंक आ रहा है, यहाँ बैंक आ रहा है और यहाँ पे भी बैंक आ रहा है, यहाँ पे भी बैंक आ रहा है और यहाँ पे भी बैंक आ रहा है। तो ये एंट्रीज़ एज इट इज़ हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएंगी, शो हो जाएंगी। देखिए ऑल एंट्रीज़ आर शोन इन द बैंक अकाउंट। ओपनिंग बैलेंस हमने बैलेंस शीट से ले लिया और ये भी हमारी बैंक वाली एंट्री आ गई। उसके बाद जो हमने पार्टनर को लोन पे किया, ये यहाँ पे हम बैंक से लोन पे कर रहे हैं, सो वो 8,000 की एंट्री आ गई। और जो हम ये पार्टनर्स को 5,000, 32,000 और 30,000 का अमाउंट पे कर रहे हैं वो भी यहाँ पे शो हो गया। एंड ऑटोमेटिकली यू विल सी बोथ साइड्स ऑफ बैंक अकाउंट विल मैच एंड that means you have solved the question very nicely. Now things to be kept in mind.
These are the notes. Go through the notes very carefully, beta. First of all, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड एंड लाइफ पॉलिसी फंड, वही चीज़ आ गई. इंश्योरेंस फ्लक्चुएशन फंड और लाइफ पॉलिसी फंड हमें क्रेडिट साइड में गिवन है, और उसी के रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट और कोई एसेट साइड में गिवन नहीं है, तो सिर्फ एक जगह पे एंट्री आएगी, अदरवाइज़ वो रियलाइजेशन अकाउंट में आएगा और वो दो जगह पे एंट्री ट्रांसफ़र हो जाएंगी. जब हम बात करेंगे गुडविल की, तो गुडविल एक आम असेट की तरह असेट होता है जो पहले रियलाइजेशन में ट्रांसफ़र हो जाता है, और उसके बाद अगर उसके रिगार्डिंग कोई पेमेंट्स आती हैं तो हम उसको असेट रिकवरी में शो कर देते हैं. और अगर कुछ ऐसा क्वेश्चन में गिवन नहीं होता है तो एक डेड असेट की तरह उसको भी काउंट कर लिया जाता है, जिसके अगेंस्ट कोई भी अमाउंट रिकवर नहीं हो पाया. सो आई होप with this video you are able to completely solve the problems, numerical problems based on realization account, based on dissolution of the firm, keeping in account all important aspects that may be given in the question, and through this you also understood how to deal with the adjustment entries. So do a lot more practice, and you are always welcome for taking up your problems. Thank you.